So, today's topic is surface hardening treatment, that is case hardening. Okay, before starting this topic, we have already discussed about defect due to heat treatment and remedial measures, then hardening defects, then we have also seen the difference between hardness and hardenability. Okay, now let's start the new topic, that is surface hardening treatment, that is case hardening. Now, see, there are certain engineering applications where it is necessary to have hard surface, wear resistant surface, but a tough shock resistant inner core. So what does this statement mean? This statement means that there are certain engineering applications. Okay, so many application there are mm, the parts which we are using, which must have the property of they must be hard at the surface, but they must be the inner material must be so such that they must, it must be shock absorbing. Okay, so this is surface hardening treatment, in which the surface is hard, whereas the but a tough and shock absorbing inner core. Now, what are the some of the examples of that? So some of the example for that are crankshaft, gears, valves, etc. Okay, these are all the example for that requires hard surface and resist wear, but had to be core to resist shock. Okay, their core are in such a way that they can resist the shock. So basically they are hard from outside and they are shock absorbing from inside. Now next point given over here is, for low carbon steel containing 0.1% carbon will have a tough core. Its surface hardness will be low after hardening. For low carbon steel, what are the problems? So in 0.5% of 0.1% of carbon, it has a tough core, but the surface is not that hardened. Okay, so 0.1% is not used just because the surface is not hardened and the core is tough. On the other hand, a high carbon steel contains 0.8% carbon, will have a high surface hardness after hardening, but the core will not be tough and shock resistance. Okay, now see, on the other hand, what we have seen, 0.8% जो हाई कार्बन स्टील है उसमें क्या होता है, उसका जो कोर है वो हार्ड रहता है, उसका जो कोर है वो टफ और शॉक रेजिस्टेंस रहता है, वेयर इट्स सरफेस इज हार्डनेस. Okay, the surface has high hardness after hardening process. So hardness and hardening we have seen the differentiations. So अब इसमें आपको क्या पता चला? Now what we get to know from this is 0.1% carbon steel is not used in case of manufacturing of materials like crankshaft, gears, valves, etc. But 0.8% of carbon containing materials can be used, just because when it is hardened, when the hardening is done, its surface is hard, but its core is tough and shock resistance, while in case of 0.1% carbon it is not possible. The important point to remember are this. These are the two important point you must remember. Okay, it can be asked to you which types of material, how much percentage of carbon in material is used for manufacturing of gears, crankshaft, etc. Okay, then the next point over here is, both this requirement cannot be met either by plain carbon steel or even alloy steel. Now these requirement cannot be met with the help of plain carbon steel or alloy steel. But however, both these properties can be achieved by employing a low carbon steel with suitable core properties and then hardening the surface
case to definite depth by adding carbon, nitrogen, or both to surface layer. So the thing is, we don't readily get this material for case hardening or for manufacturing of crankshaft gears, etc. What we have to do is we have to achieve both this property by involving a low carbon steel with suitable core properties and then hardening the surface to a definite depth by adding carbon, nitrogen, uh, or both to the surface. So what we have to add on the surface? Carbon or nitrogen to get it hardened. Okay, now see, I have told you before also, so it is not readily available, this material is not readily available that can convert the surface hardness, and the inner core will be shock resistance. So what we have to do in this case, we have to achieve by employing the low carbon steel with suitable core properties, and then the hardening the surface, then the hardening of the surface is to be done to definite depth. Okay, to definite depth by adding carbon, nitrogen, or both. See, so you have to remember this point also. So what we get to know from surface hardening treatment? First of all, what are the engineering applications where it is needed? The surface must be hard and the core must be shock resistance. So the engineering applications you must write. Which are they? It is crankshaft, gears, valves, etc. Okay. Then why we can't use 0.1% of carbon steel with 0.1% of carbon? Because its surface hardness is low and core is tough. Okay, but why 0.8% of carbon? What is the problem in 0.18% of carbon? It will have high surface hardness and after hardening, but the core will not be tough. Okay, so in here core will not be tough in 0.8%. So अगर 0.1% में एक प्रॉपर्टी क्लियर होती है तो 0.8% में एक प्रॉपर्टी क्लियर होती है. सो ऐसा नहीं है कि दोनों में दोनों प्रॉपर्टी क्लियर होती है. सो इट विल बी आस्क्ड टू यू कि ऐसा क्यों 0.1% और 0.8% में क्यों नहीं बना सकते. तो क्या प्रॉपर्टी क्लियर होती है 0.1% से और क्या प्रॉपर्टी क्लियर होती है 0.8% से, तो ये आपको बताना है. और फिर अगर आपको मैन्युफैक्चर करना है क्रैंकशाफ्ट, गियर, वॉल्व एक्सेट्रा, तो क्या मटेरियल लगने वाला है आपको. ठीक है, तो आपको फ्यूजन लगने वाला है जैसे मैंने आपको बताया. ठीक है, इट कैन बी अचीव बाय एम्प्लॉइंग लो स्टील विथ सुटेबल core properties and then hardening the surface at the depth. Okay, with the adding of carbon, nitrogen or both on the surface. ठीक है, तो ये था हमारा सरफेस हार्डनिंग ट्रीटमेंट का पार्ट, डेट इज केस हार्डनिंग. केस हार्डनिंग आप आगे जाके देखोगे एमएसडी एक्सेट्रा सब्जेक्ट, एमएसडी ये सब्जेक्ट में जो आपको 4th ईयर में रहने वाला है. ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सरफेस हार्डनिंग ट्रीटमेंट. So these are the two main classification of surface hardening treatment. Okay, these treatment are known as case hardening or surface hardening treatment. Mainly these process are classified into two main groups. नाम तो आपको पता है, यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे भी बताया गया है कि इसे सरफेस हार्डनिंग और केस हार्डनिंग दोनों बोला जाता है. इज इट क्लियर. और यहाँ पे देखिए यही बताया गया है, केस हार्डनिंग या फिर सरफेस हार्डनिंग बताया जाता है. तो विच आर द टू मेन groups in which they are classified. Okay, so first is by changing the chemical composition at the surface, and the second is without changing the chemical composition at the surface. Now देखिए, changing the chemical composition at the surface, अगर आपने यहाँ पे अच्छे से देखा होगा तो by adding carbon, nitrogen or both on the surface layer, this can change the chemical composition of the surface. ओके, तो यही बताया गया है कि दो
it can be classified into two types, two main groups. So in one, which is by changing the chemical composition, and second is without changing the chemical composition. ठीक है, तो इतना आपको क्लियर है. अब आगे जो है, by changing the chemical composition of the surface. ठीक है, by changing the chemical composition of the surface, in this group they are further divided into, so they are further divided into three types. Okay, ये जो types है, these are by changing the surface composition, chemical composition. Okay, now which are they? So first is carburizing. ठीक है, second is nitriding, and third is carbonitriding. Okay, the third one is carbonitriding. So third one is carbonitriding, carburizing, nitriding, carbonitriding. So these are the three steps. तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कार्बोनाइजिंग में क्या होता है. कार्बोनाइजिंग में कार्बन ऐड होता है एट द सरफेस. नाइट्रेटिंग में नाइट्रोजन आपका ऐड होता है, और थर्ड में आपका कार्बन और नाइट्रोजन बोथ ऐड होते हैं. देखिए यहाँ पे मैंने बोला था. ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सरफेसेस चेंज होते हैं विद द एडिंग ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन और बोथ ऑन द सरफेसेस. तो वही यहाँ पे दिया गया है, कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग एंड कार्बोनाइट्राइडिंग. ओके, बाय चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन. उसके बाद इन दिस, अब ये क्या, यहाँ क्या दिया है, इन दिस प्रोसेस कार्बन और नाइट्रोजन और बोथ diffuses in the surface layer of the low carbon steel. लो कार्बन स्टील, ये आपको याद रखना है, यहाँ पे भी बताया था मैंने, लो कार्बन स्टील. ओके, एम्प्लॉइंग अ लो कार्बन स्टील विद सुटेबल कोर प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो लो कार्बन स्टील यूज होता है, विच फाइनली चेंज केमिकल कंपोजिशन टू द सर्टेन डेप्थ ऑफ द सरफेस लेयर, विच फाइनली चेंजेस द केमिकल कंपोजिशन टू सर्टेन डेप्थ ऑफ द सरफेस लेयर. ठीक है, तो ये तीन प्रोसेस हो गए आपके सरफेस हार्डनिंग या कोर हार्डनिंग करने के. सरफेस हार्डनिंग या फिर आपके केस हार्डनिंग करने के. उसके बाद आपका आता है विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सरफेस लेयर. ठीक है, तो विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सरफेस लेयर में क्या आता है आपका. सो ये दो तरीके में डिवाइड होता है. सो इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू प्रोसेसेस. सो उसमें पहला जो है वो है फ्लेम हार्डनिंग. फर्स्ट इज फ्लेम हार्डनिंग एंड द सेकंड इज इंडक्शन हार्डनिंग. फ्लेम हार्डनिंग एंड इंडक्शन हार्डनिंग. तो इसमें जो आपने देखा सेकंड में, तो केमिकल कंपोजिशन जो है सरफेस का वो चेंज नहीं होता है. वाइल जो फर्स्ट में है, फर्स्ट में ये जो तीन टाइप देखे हमने, उसमें केमिकल चेंजेस होते हैं. केमिकल जो होता है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑन द सरफेस चेंजेस. ठीक है, हम झट से रिवाइज कर लेंगे. तो पहले में क्या था, कार्बोराइजिंग, एडिशन ऑफ कार्बन, नाइट्राइडिंग, एडिशन ऑफ नाइट्रोजन, एंड कार्बोनाइट्राइडिंग, दैट इज एडिशन ऑफ कार्बन प्लस नाइट्रोजन. whereas in second thing it was flame hardening and induction hardening. तो अभी ये सब क्या है, कार्बोनाइजिंग, नाइट्राइडिंग, कार्बोनाइट्राइडिंग, देन फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, वी विल सी नेक्स्ट. अब हम चलते हैं कार्बोनाइजिंग की तरफ. सो कार्बोनाइजिंग क्या है. So this is a matter of enriching the surface layer of low carbon steel with carbon in order to produce a hard case. So see, ये short and simple definition है आपकी कार्बोनाइजिंग में. क्या बताया गया है कि ये एक मेथड है जिसमें जो सरफेस है कंपोनेंट का, उसे एनरिच किया जाता है कार्बन से. ठीक है, और वो जो हम जिस पे कार्बोनाइजिंग कर रहे हैं, that is we are enriching carbon, that metal should be low carbon steel.
आपको याद रखना है कि लो कार्बन स्टील पे ही कार्बनाइजिंग नाइट्राइडिंग या कार्बोनाइट्राइडिंग करनी है। इन कब? जब आपको सरफेस हार्डनिंग या फिर सरफेस हार्डनिंग मतलब ही आपको केस हार्डनिंग करनी है तब। ठीक है, दैट इज atomic carbon is diffused in the surface layer of the component, due to which the surface layer become hard. ठीक है, that is atomic carbon is diffused in the surface layer of the component, due to which the surface layer become hard and wear resistance. तो देखिए, ये तो पहला आपका हो गया डेफिनेशन। ओके, उसके बाद ये हो गया आपका उसमें क्या, दैट इज द प्रोसीजर, व्हाट इज डन इन द प्रोसीजर, और जिसके वजह से उसके वजह से क्या होता है। ठीक है, आपके 3 पॉइंट क्लियर हो गए ये 3 लाइंस में, और ये तीनों इंपॉर्टेंट लाइन है। तो इसमें पहले तो बताया गया आपको डेफिनेशन, दूसरा आपको बताया कि कार्बन डिफ्यूज होते हैं, एटॉमिक कार्बन डिफ्यूज किए जाते हैं मटेरियल में। ठीक है, उसके बाद आपको बताया गया कि उससे क्या होता है, उससे आपका जो मटेरियल है दैट इज लो कार्बन स्टील, वो आपका हार्ड हो जाता है और वियर रेजिस्टेंस हो जाता है। तो यूजुअली अब बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। यूजुअली कार्बन 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 sorry carburizing is carried out in the temperature range of 900 to 950 degrees Celsius, and carbon is in the surface layer is increased up to 0.7 to 0.9%. ओके, यहाँ आपको टेम्परेचर मिल गया। तो ऑपरेशन का टेम्परेचर आपका क्या हो गया, आपका ऑपरेशन का टेम्परेचर हो गया 900 टू 950 डिग्री सेल्सियस, और आपका कार्बन इन द सरफेस इज इंक्रीज अप टू 0.7 टू 0.9%। आपका कार्बन कितने परसेंट से बढ़ रहा है, 0.7 टू 0.9% से। ठीक है, सो अगेन वी गॉट द इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द फर्स्ट इज द टेम्परेचर रेंज एंड द सेकेंड इज द कार्बन आपका कितने से इंक्रीज होता है, तो दैट इज 0.7 टू 0.9 डिग्री सेल्सियस 0.9%। ठीक है, तो दिस टू टॉपिक्स आर कवर्ड। सो अब तक हमें क्या पता चला, हमें पता चला कार्बनाइजिंग की डेफिनेशन क्या है उसके बाद कार्बनाइजिंग में किया क्या जाता है, उसके बाद वो करने से हमें क्या मिलता है, डेट इज लो कार्बन स्टील जो है हमारा वो क्या होता है, वो हार्ड हो जाता है और वेयर रेजिस्टेंस हो जाता है। उसके बाद हमें पता चला कि वो कौन से टेम्परेचर रेंज में किया जाता है। उसके बाद हमें पता चला कि लेयर इंक्रीज हम कार्बन की कितनी लेयर चढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये जो 5 पॉइंट है वो आपके क्लियर हो गए। अब कार्बनाइजिंग की अगर आपको एक्सप्लेन इन शॉर्ट दिया गया तो आपके ये 5 पॉइंट आप लिख सकते हो इजीली। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो एज कार्बनाइजिंग इज कैरिड आउट at about 900 degrees Celsius, where single phase austenite is present, since the solubility of carbon is more in austenite state that in ferrite state, therefore fully austenitic phase is required for carburizing. देखिए, अभी यहाँ आया आपका टेक्निकल पार्ट। तो इसमें क्या दिया गया है आपको, जो 900 डिग्री सेल्सियस पे आपका हीट हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे सिंगल फेज ऑस्टेनाइट प्रेजेंट होने वाला है आपका। So austenite state is ferrite state, therefore fully austenite phase is required for carburizing. ठीक है, आपका फुल आपका ऑस्टेनाइटिक फेज इज रिक्वायर्ड फॉर कार्बराइजिंग, इतना याद रखना है। 900 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपका सिंगल फेज ऑस्टेनाइट फेज रहता है। ओके, सो दीज आर सम टेक्निकल पॉइंट्स विच यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर। ये भी आपको लिखना है, बस आपको ये सब मिल गया तो ऐसा नहीं कि ये लिखना नहीं है, ये भी आपको लिखना है। दिस कैन बी अचीव्ड बाय हीटिंग द स्टील अबाउ द क्रिटिकल टेम्परेचर। अब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है ये मैंने आपको बहुत बार बताया है। ठीक है, अपना क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है ये हमने टीटीटी डायग्राम, सीसीआर डायग्राम, ये सब चीज़ों में मैंने बताया, AC3 वगैरह ये सब। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स में फिर से रिपीट नहीं करने वाला हूँ। दिस कैन बी अचीव्ड एट बाय हीटिंग द स्टील अबव क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये भी पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आता है व्हेन द स्टील इज केप्ट इन कंटेंट विथ
with carbonaceous material which is high in carbon content, and due to chemical reaction the atomic carbon get diffused into steel surface layer. तो किया क्या जाता है, ऐसे नहीं है कि कार्बन with the help of jet it is bombarded on the surface. What is done, it is kept in the contact with the carbonaceous material. अब carbonaceous material क्या रहता है, वो material ऐसे रहते हैं जो which they are high in carbon content. Okay, now due to which what happened, the chemical reactions takes place and the atomic carbons get diffused in the steel surface layer. तो ये आपका प्रोसीजर हो गई. ओके, ये मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दे रहा हूँ, ये आपकी प्रोसीजर हो गई. दिस आई विल मार्क इट एट पी. दिस इज योर प्रोसीजर. ओके, नाउ अगर आपको पता पूछा भी गया कार्बोनेशियस मटेरियल्स क्या रहते हैं, तो तभी बता सकते हो आप कि दे आर हाई इन कार्बन्स. ओके, एंड वेयर आर दे यूज, दे आर यूज्ड इन कार्बोनाइजिंग ऑफ लो carbon steels. Okay, the carbonaceous material or atmosphere which may be solid, a liquid or a gas depend on it, that is carbonaceous material. There are three general methods of carbonizing. Those are, so देखिए पहले तो तीन मेथड्स हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, विदाउट चेंजिंग with changing the chemical composition at the surface we can do the case hardening. बराबर, पहले तो वो तीन प्रोसीजर्स है, डेट इज कार्बनाइजिंग, नाइट्राइडिंग एंड कार्बन नाइट्राइडिंग. ठीक है, उसमें भी अब कार्बनाइजिंग में तीन मेथड्स है जो कि कार्बनाइजिंग करने के लिए हमें यूज हो सकते. तो उसमें से पहला है हमारा पैक कार्बनाइजिंग, सेकेंड है लिक्विड, और थर्ड एक्चुअली पीपीटी में कट हो गया है, तो थर्ड है हमारा वो है गैस कार्बनाइजिंग. ठीक है, इजी टू रिमेंबर. सो फर्स्ट इज पैक, सेकेंड इज लिक्विड और थर्ड इज गैस. नाउ पैक अगर आपको लग रहा होगा तो पैक को सॉलिड कार्बनाइजिंग भी बोलते हैं. ठीक है, तो पहली चीज पैक आप ऐसे याद मत रखिए, पैक की जगह आप सॉलिड कार्बनाइजिंग भी लिख सकते हैं. ठीक है, ये आपका सॉलिड हो गया. यहां मैं थर्ड लिख देता हूं, दैट इज गैस. तो पैक इज सॉलिड कार्बोनाइजिंग, देन लिक्विड कार्बोनाइजिंग, देन गैस कार्बोनाइजिंग. सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ कार्बोनाइजिंग इन विच कैन बी यूज टू परफॉर्म फॉर डूइंग केस हार्डनिंग. अब ये जो पैक कार्बोनाइजिंग, लिक्विड कार्बोनाइजिंग, गैस कार्बोनाइजिंग है, ये मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ क्या है. अभी शॉर्ट में समझाते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में ये डिटेल में देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड रिएक्शंस व्हिच टेक प्लेस इन पैक कार्बोनाइजिंग, लिक्विड कार्बोनाइजिंग एंड गैस कार्बोनाइजिंग. व्हाट आर देयर एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन डिटेल in next lecture. So first we will go on pack carburizing. It is also known as, so first point to know our pack carburizing is, it is also known as solid carburizing. In this process the components of low carbon steel are packed with the carbonaceous solid mixture of 80% charcoal powder and 20% barium chloride. So barium chloride is BaCO3. okay, तो क्या किया जाता है, ये जो सॉलिड है इसे हम पैक करते हैं कार्बोनेशियस सॉलिड के साथ. तो वो क्या है, मैंने आपको बताया था, विच इज हाई इन कार्बन. ओके, उसे पैक करते हैं एंड देन प्रोसेस ऑफ कार्बोनाइजिंग टेक्स प्लेस. तो ये आपका हो गया एक पैक कार्बोनाइजिंग. उसके बाद लिक्विड कार्बोनाइजिंग. तो लिक्विड कार्बोनाइजिंग में क्या होता है, मोल्टन बाथ होती है, मोल्टन. सो लिक्विड कार्बोनाइजिंग इज carried out in molten bath of various salt mixtures. Generally the composition of the salt mixtures consists of 20 to 50% sodium cyanide, 40% of sodium carbonate and varying amount of sodium and barium chloride. तो इसमें भी बेरियम क्लोराइड है. ठीक है, इसमें हमने देखा कि तीन टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स है, वो है सोडियम साइनाइड, उसके बाद आपका होता है सोडियम कार्बोनेट, उसके बाद आता है आपका
बेरियम क्लोराइड। ठीक है, ये आपका हो गया लिक्विड में। उसके बाद आपका आता है गैस में। सो डोंट वरी, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन डिटेल विद द रिएक्शंस। तो आपका गैस में क्या है, इन दिस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट द मेटेलिक components are heated in a gaseous atmosphere which will deposit carbon atom by decompositions at the surface of component. Generally, the continuous type of surface furnace are used in process. So, gas carbonizing में continuous type of furnaces use होते हैं. This treatment is carried out at about 900 degree Celsius and required 3 to 4 hours to complete. देखिए, हमने कार्बोनाइजिंग में ही देख लिया कि इस स्लाइड में हमने देख लिया कि ये देखिए, ये पॉइंट में 900 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही होता है ये प्रोसेस। ठीक है, 900 डिग्री सेल्सियस मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर ही होता है ये प्रोसेस। इज इट क्लियर? सो आज हमने शॉर्ट में देख लिया पैक, लिक्विड, गैस कार्बोनाइजिंग और कार्बोनाइजिंग। उसके बाद हमने ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।